Now one more person come in the front. Change. Come. Sunina. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पत आनश्वन्नोतिभिस्वेदसादनम् ओम श्री महागणपतये नमः। गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय Abhi go this way. ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। Now change over. तत्रापि गहनं गगनं विशोकस्तस्मिन् यदन्तस्तदुपासितव्यम् यो वेदादौ स्वरः प्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिलीनस्य यः परः स महेश्वरः। बोले श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। धर्म की जय हो। No, 1 minute. Just slowly, slowly. यात्रा जो था उसका यहाँ पे संपन्न हुआ है। बस 30,000 किलोमीटर यात्रा करके यहाँ पहुँची है। So this Amrit Yatra is in celebration
of the 75th year of Chinmaya Mission. Swami Chinmayanand started his movement of cultural revival and national development in 1951. So in the 75th year, the Chinmaya Mission and the All India Chinmaya Yuva Kendra is organizing this Amrit Yatra to take the message of Swami Chinmayanand for youth empowerment and national development across the country to colleges and to schools, to 10 lakh youth across the country. So we started the journey on 31st December and the Yatra will conclude after 300 days after 35,000 kilometers in Delhi on October 23rd, 24th and 25th. महाराज जी कुल कितने लोग इस बस में यात्रा के साथ चल रहे हैं? So this Amrit Yatra convoy has the Amrit Vahini, which is a 26-seater bus but which has been converted to a temple on wheels. So it carries Puja Gurudev's Murti, the things that Puja Gurudev utilized. So that is an inspiration for a lot of people. Plus it has a convoy of 3 cars. So what is special about these cars is that one car is taken only by ladies. So we have an all-women's car in this convoy. They drive 35,000 kilometers. They take care of everything about that particular car. इस अमृत वाहिनी के जरिए मैसेज देश को क्या देना चाहेंगे यात्रा? So the main message that this Amrit Yatra is giving, that is youth empowerment for national development. Swami Chinmayanand Ji was not just a spiritual guru. Swami Chinmayanand Ji was a Rashtra Sant. Swami Chinmayanand Ji was a patriotic saint. So Swamiji in his message, in his pledge, said service to the country is the service to the Lord of Lords and devotion to the people is the devotion to the Supreme Self. So Gurudev equated devotion to the country as devotion to God Himself. So thus the message is youth empowerment for national development. I'm happy to be part of this Amrit Yatra of Chinmaya Mission, and also it happens to be the 75th year of Chinmaya Mission. It's a great moment to be here and participate. Got invitation and then I thought I was fortunate for me to have participated. And more importantly, looking at the Amrit Vahini, the vehicle in which also brings back a lot of touch points of our cultural heritage, spirituality, and also need to learn the old Vedas, Upanishads, and more importantly the way to live. And it's also an inspiration because Chinmaya Mission also actively works with a lot of young people and trying to motivate and get them into. I think that's also very important because while we have on one side we are moving towards digital revolution, AI, it's also important about preparing ourselves as youth and people. And I think that's where the whole scheme of this Amrit Yatra, everything falls in place and brings people together. And it also teaches about selfless service, little bit of dharma, spirituality, our roots of culture and spirituality, and makes it that much more interesting. And I was listening to the experience of the Vahini operators, the young guys, each one coming from a different stream. It's very inspiring to know what they have learned and how they are implementing it in their scheme of things. So overall, and Gurudev's blessings in Swami Chinmayananda. So I think that's also taking it forward, the heritage of Chinmaya Mission and the Gurudev's teachings. And that's actually, I would feel that when we are talking about Viksit Bharat, made in India, everything, it's also about all of us also have to be truly made in India. And that culturally we need to fit in and be able to transform. And we say that's an American culture, now that's an Indian culture, and people should say, I want to follow Indian culture and Indian traditions. And that should be made international. That's the best part of it. Thank you, Hari Om. आज चिन्मय मिशन में आए हैं अमृत वाहिनी, यहाँ पे यात्रा पे निकले हुए एक विश्व को मैसेज देना। आज का दिन बड़ा शुभ है पवई के लिए, जो 75 बाद ये दिन आया है। आज 1951 में स्वामी जी यहाँ आए थे। उस वक्त पवई में एक इंस्टीट्यूशन थी, आश्रम दूसरी इंस्टीट्यूशन बनी, उसके बाद IIT बनी तीसरी इंस्टीट्यूशन। जो सबसे पहली इंस्टीट्यूशन थी वो थी लासन टूब्रो। मैं लासन टूब्रो में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रह चुका हूँ। उसके बाद IIT बनी, 2003 में IIT बनी, 2004 में IIT बनी, 2005 में IIT बनी, 2006 में IIT बनी, 2007 में IIT बनी, 2008 में IIT बनी, 2009 में IIT बनी, 2010 में IIT बनी, 2011 में IIT बनी, 2012 में IIT बनी, 2013 में IIT बनी, 2014 में IIT बनी, 2015 में IIT बनी, 2016 में IIT बनी, 2017 में IIT बनी, 2018 में IIT बनी, 2019 में IIT बनी, 2020 में IIT बनी, 2021 में IIT बनी, 2022 में IIT बनी, 2023 में IIT बनी, 2024 में IIT बनी, 2025 में IIT बनी, 2026 में IIT बनी, 2027 में IIT बनी, 2028 में IIT बनी, 2029 में IIT बनी, 2030 में IIT बनी, 2031 में IIT बनी, 2032 में IIT बनी, 2033 में II
आईआईटी से पास किया, यहाँ पे लासन टोब्रो में नौकरी की। 48 साल 48 इयर्स के बाद मैं इस साल रिटायर हुआ हूँ। मिशन के साथ 1977 से मैं जुड़ा हुआ। तो हमारे लिए आश्रम ये घर जैसे है कि हम हमेशा कोई फंक्शन है तो यहाँ आते हैं। तो आज का दिन तो इतना स्पेशल था कि गुरुजी आज गुरुदेव खुद यहाँ आए, तो ये स्पेशल है आज के दिन के लिए कि यहाँ आए। दूसरा चीज़, जो 75 साल स्वामी जी की जो जनता की सेवा की, जो नॉलेज पब्लिक को दिया पूरा, भगवत गीता और कर्मयोग, ज्ञान योग के रूप से निर्वाण कैसे पाए, हम हमारे सुख दुखों से कैसे दूर निकले, इसका पूरा जो निचोड़ है वो स्वामी जी हमेशा उनके स्पीचेस में देते थे। मेरा प्रिविलेज है कि 1977 में सबसे पहले लासन टोब्रो में स्वामी जी का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था। लासन टोब्रो के एम्प्लॉयज़ में से करीबन 2,500-3,000 एम्प्लॉयज़ एक साथ में बैठ के स्वामी जी का डिस्कोर्स हमने सुना था। अब उसके बाद में स्वामी जी के साथ हम लोग जुड़े हुए थे। ये आश्रम में बैठ के हमने पूरा वेदांत जो कोर्स होता है वो भी यहाँ किया हुआ है। तो ये एक बड़ा स्पेशल फीलिंग है आश्रम में आने का कि यहाँ कोई बड़ा प्रोग्राम है। और जब गुरुदेव खुद आते हैं, हम कहते हैं कि पूजा में हम इन्वोक करते हैं, पूजा करने के टाइम पे आप आए बिराजे यहाँ, तो उनका जो उन्होंने खुद यूज़ किया है इतने सालों में, वो खुद यहाँ पे आज आया हुआ है। तो ये जो वैन जा रही है पूरी ऑल ओवर इंडिया, उसमें स्वामी जी की खुद की यूज़ की हुई चीज़ें, उनका पेन, उनका चार्ट, उनका कहने का तरीका, उनकी शूज़, उनके खड़ा, उनके वस्त्र, उनका फ़ोटो, उनका पूरा मूर्त स्वरूप, ये पूरा भारत भर जा रहा है। हमें याद है कि स्वामी जी जब भी उनके गुरु से हिमालय से नीचे उतरे थे तो उन्होंने एक वाव ली थी कि जिस दिन मैं किसी को गीता नहीं सिखाऊंगा मैं खाना नहीं खाऊंगा। एक कहते हैं कि जो गृहस्थ का काम होता है कि कोई भी स्वामी या ब्रह्मचारी आए तो उसको खाना खिलाए। तो स्वामी जी कहते थे कि मैंने जब तक आपको कुछ सिखाया नहीं मैं खाऊंगा नहीं। सबसे पहले आए तो पूना में एक मारुति मंदिर में उन्होंने बात करना चालू किया है 4-5 लोगों से, और वो पहला उनका जो डिस्कोर्स था उसमें 500 लोग जुड़ गए। और फिर कभी मिशन को पीछे नहीं देखना नहीं पड़ा। हम लोगों को बहुत कम मालूम है, आज की पीढ़ी को बहुत कम मालूम है कि स्वामी जी ने विश्व हिंदू परिषद की स्थापना जो हुई थी वो यहाँ अपने आश्रम में हुई थी। जो मंदिर आप हम देखते हैं जगदीश्वर का शिव मंदिर में, यह शिव मंदिर में बैठ के सारे हमारे जो हिंदू उस वक्त के टीचर्स थे, ये सब लोग साथ में आके विश्व हिंदू परिषद की स्थापना हुई कि धर्म उत्थापन कैसे हो। तो हम लोगों ने ये सारा देखा है, हमारी ज़िंदगी में देखा है। आज बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी यहाँ आने की, तो इसलिए बड़ी खुशी है यहाँ आने की इस प्रोग्राम में। थैंक यू। देंगे आज वाहिनी जो है यात्रा के दौरान यहाँ पे मुंबई में उपस्थित है, स्वामी जी उसमें विराजमान हैं। पूज्य गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज ने अपने जीवन में पूरे देश भर में भ्रमण करके वेदांत और भगवत गीता की शिक्षा दी। वे एक जगह नहीं बैठे जहां शिष्य आकर उनसे ज्ञान प्राप्त करें। अपने जीवन में वह गांवों से लेकर शहरों से लेकर देश विदेश गए और इस ज्ञान गंगा को और इस ज्ञान अमृत को घर घर में पहुंचाया। और यह जो 75 साल है चिन्मय मिशन का, पूज्य गुरुदेव का जो प्रेम है, ज्ञान है, और उन्होंने जो अमृत आनंद बांटा सब में, यह चिन्मय वाहिनी पूरे देश भर में, नेपाल से लेकर श्रीलंका तक, आसाम से लेकर हिमाचल तक, गुजरात तक, सब जगह
पूज्य गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज के बारे में लोग जाने और जिस शैली से उन्होंने यह भगवत गीता का जो ज्ञान है, जो अब हम 5 श्लोक में उसका पूरा सार, अगर देश भर में लोग इन 5 श्लोक, जिसको हम गीता पंचामृत कहते हैं, जो भगवत गीता में से है, हमारी माता से है, अगर देश भर में लोग इसका हर रोज पाठ करें और उसमें जो ज्ञान है उसके आधार पर अपने जीवन वह जिए, तो हमारा ही नहीं देश का भी उद्धार होगा, उत्थान होगा और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण हो सकता है। हरि। थैंक यू।